have seen how to derive a load line of a transistor, and we have seen that how the Q point is maintained at the center of the transistor. Then we are going with a biasing technique. So here first we are going to see a base bias. In a base bias, there are two segments that have been drawn in front of you. In a first segment, as you can see, this is a base bias without resistance Re. And in a second diagram, you can see it is a base bias with resistor Re. So what things we have done over here, I will quickly go through what are the things that we have done over here. So what we have done is the first point, if you see the first circuit, I am talking about this particular segment. First circuit, I am talking about this particular segment. So if you see this circuit, then what we have observed in this circuit, what we have done, we had applied a KVL equation to the input side. The equation has been applied in a direction indicated in the figure. So we have applied an equation like this, and then we have understood the equation starts from this point VCC and it ends at ground. The equation starts at VCC and it ends at ground. So we have seen VCC minus IBRB minus VBE minus 0 is equal to 0. So this is the equation we are going to get, which will make us understand what is value of IB and what is value of IC. IC is, you know, we have seen during our last lecture, IC is equal to beta into IB. So this is the input loop equation. So here you are able to conclude two things. Then the next equation we had applied like this, as shown in figure. We had applied this equation like this. So you can see the direction of the equation in which we are applying the equation. So this gives us VCC minus IC into RC minus VCE minus 0 is equal to 0. So if you apply the outer loop equation, then this is the equation you are going to get as drawn over here. So this will give you an idea about how to calculate the VCE. So always remember these three things. First, how to calculate IB. Second, how to calculate IC. And third, how to calculate VCE. These are the three things you have to always remember. So then we had understood the same bias by implementing one more resistor inside this. So what is the difference over here? So you can see at the emitter, we had applied one resistor which is known as emitter resistor Re. So here also what we have done, we had applied the first KVL as shown in figure. As shown by this direction, we had applied our first Kirchhoff voltage law. So this had given us our equation VCC minus IBRB minus VBE minus IE into RE is equal to 0. So what is the additional term that you are getting into this particular equation by using this emitter resistor Re? So you can see you are getting this equation IERE. IERE is an additional term. Then that IE can be represented by 1 plus beta into IB. Do that. Then take this IB common. After taking this IB common, you what remains into the bracket, you can see into the shown equation. What your equation has been drawn, you can see there what remains into the bracket. And then you can find value of IB. So you can find value of IB like this. And here is your value of IB. You can see VCC minus VBE upon RB into bracket 1 plus beta into RB. Now, what is the difference over here? So if you compare with your previous equation, this is the equation, previous equation, that is without emitter resistor Re. If you compare this with this previous equation, you can see this equation. Then what is the difference is, in this previous equation, you can only find this base resistor RB into the denominator. Whereas if you compare this with the another equation that you have found, then you can find you are getting this additional term 1 plus beta into Re into the next equation. So that is a huge difference which is caused due to this emitter resistor Re connected at the emitter circuit. So this improves stability a lot. We will see that in our coming lectures, that how are the impact of this component. Then you go for IC calculation, that is same beta into IB. And then VC can be given as VCC minus ICR. Actually, I should use a yellow color for writing down the equation. I will do that. Just give me a moment. So I have to write down the equation of VCE. So now I can write down value of VCE can be represented
VCE can be given as VCE is equal to VCC minus IC RC minus IE RE. Here one more thing can be done, students. IE and IC are approximately equal because IB is very, very small. So you can replace this IC and IE by a single component like IC, and then you can write down into. I will just show you how the equation approximately can be given by. This can be given as VCC minus IC into bracket RC plus RE, because IC and RE are approximately same. So this is how this equation can be approximated. I am just putting it in front of you for enhancement of the knowledge. If you don't do it like this, then also it is okay. This also reduces the complexity into the calculation. When you perform the calculation, this will also reduce the complexity of the calculation. Okay, students. So what we can see over here is there are two components which have been drawn, RC and RB. And let us now list out the name of the current flowing through the circuit. So you can see the current that will flow through this particular component RB. This can be denoted by base current IB. The same base current IB will flow over here, and the same base current IB will come, it will flow, and as you can see the same base current IB will enter into the base terminal. Then the current that is flowing over here, this current can be given by collector current IC, and you can see that the collector current IC will enter into the collector, and similarly I can conclude that the emitter current over here can be represented by IE, which will come out of the emitter. Now there is only one important question which has to be answered, that what will be the value of current that will flow through this collector resistor RC. So if you want to calculate this current which flows through this particular component, and if I want to write down the value of this current which flows over here, then this current you can find, this current is nothing but addition of IB plus IC. So I can write down this current is nothing but IC plus IB, and you know the mathematical equivalent value for this current can be given as IC plus IB is equal to IE. So actually through the emitter, through the collector resistor, the amount of current that is flowing is nothing but equivalent to the emitter current IE. It cannot be defined as emitter current, but it is the value, mathematical value of that is equals to the emitter current, value of emitter current IE. Then you know what are the voltages to be indicated. Collector to emitter voltage can be given by collector to emitter voltage, which can be given by VCE between collector and emitter, given by VCE between collector and emitter with upper terminal positive, lower terminal negative. Similarly, voltage between base and emitter represented by VBE with upper terminal positive, base positive and emitter negative. So here we can start writing down equations now. So let us understand how the first equation has to be written. So the first equation has to be written like this. By looking toward the entire way of writing down the equation, you must have understood the equation will start at VCC, and by going through the base side, it will end at 0. So how this equation can be given as VCC. मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना उसका आंसर कैसे देंगे ये मैं आपको अभी पहले ही बताता हूँ. अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मेरा क्वेश्चन पूछने के बाद में आप आंसर टाइप करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपका आंसर है IB इंटू RB, तो आप ये इस तरीके से आपके इसमें टाइप करेंगे IB इंटू RC. लेकिन आप जब तक मैं बोलूँगा नहीं एंटर मारेंगे नहीं. आप जब तक मैं बोलूँगा नहीं एंटर मारेंगे नहीं. एंटर मारेंगे नहीं मतलब आंसर चैट बॉक्स में लिखना नहीं चाहिए जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक. जैसे ही मैं बोलूँगा गिव द आंसर, आप एंटर कर दोगे तो सारे लोगों के आंसर एक ही साथ में डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पर. This segment I am talking about, I will start like this and I will come to this particular point.
आई होप द पिक्चर इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो इसमें एक पहला पॉइंट आएगा VCC, दूसरा पॉइंट आएगा माइनस ऑफ current multiplied by RC. So you write down the answer, that what will be the answer. क्या लिखेंगे? VCC माइनस, आंसर टाइप करो, जैसे ही बोलूंगा वैसे आप एंटर मारेंगे. VCC माइनस something multiplied by RC. And surprisingly, all of you had given perfect answer. It is VCC minus IE multiplied by RC. तो पहला कंपोनेंट हो गया. गलत है तो भी चिंता मत करो, बराबर आप लोग बहुत मैक्सिमम लोग बराबर हो. तो पहला इक्वेशन यहाँ आ गया, VCC माइनस IE मल्टीप्लाइड बाय RC. ये याद रखना, ये बाद में मुझे लिखना है, बराबर है. ये एक हो गया. इसके बाद में आगे जाएंगे, ये ब्रांच में से जाएंगे, तो ये यहाँ पर क्या इक्वेशन आएगा बोलिए, लिख के रखना. नेक्स्ट इक्वेशन विल बी माइनस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय RB. लिखते जाओ, चैट बॉक्स में लिखते जाओ, माइनस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय RB. बोलो क्या आएगा, एंटर. परफेक्ट, माइनस IB इंटू RB. अभी मैं आगे का बस हो गया. बच्चों टाइप करते ही रहो ना. अभी आपको मालूम है नेक्स्ट क्या पूछने वाला हो, तो पहले टाइप करके ही रखो ना उसको. यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इस तरीके से यहाँ तक जाऊंगा. बोलिए यहाँ पर मैं एक वोल्टेज में से पास हो रहा हूँ, तो क्या आएगा, टाइप करके रखो वहां पर, माइनस VB आएगा. वो मैंने बोला नहीं तब तक एंटर करना नहीं. कितना आएगा, माइनस VB इज इक्वल टू 0. माइनस VB प्लस माइनस के नोटेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन. आप लोगों को याद है तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को कितना याद है स्टूडेंट. इक्वेशन कैसे आएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन. हाँ मैं समझ गया. इक्वेशन कैसा आएगा, हमने स्टार्ट किया था VCC माइनस IE इंटू RC माइनस IB इंटू RB माइनस VBE इक्वल्स टू 0. ये हमने अभी देखा था. अभी क्या करेंगे, वोल्टेजेस को साथ में ले लो, करंट्स को साथ में ले लो. वोल्टेजेस क्या है, VCC माइनस VBE माइनस IB RB माइनस IE को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 प्लस बीटा इंटू IB इंटू RC इज इक्वल टू 0. अभी ये आपको देगा IP का आंसर. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. द वैल्यू ऑफ IB कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सो IB कैन बी गिवन एज IB इज इक्वल टू VCC minus VBE upon RB plus 1 plus बीटा इंटू RC. अभी आपने इसमें डिफरेंस क्या देखा वो मैं आपको बताता हूँ. आपने इसमें डिफरेंस क्या देखा, ये देखो, ये रहा आपका इक्वेशन. तो आपने इसमें डिफरेंस क्या देखा, पहले वाले इक्वेशन में अगर आपको याद होगा तो एक बात आप समझ सकते हो सभी लोग कि ये जो है ना VCC माइनस VB, अगर आपने देखा तो ये जो VCC माइनस VB है ना, ये भाई साहब है ना हर इक्वेशन में ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं. ये हर इक्वेशन में ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं. क्या बदलता क्या है, तो ये नीचे वाला सीन बदलता है. अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ. जब आपने पहला बायसिंग देखा था तो यहाँ पर सिर्फ कौन था, RB था डिनोमिनेटर में. बाद में आपने दूसरा बायसिंग देखा तो कौन आया डिनोमिनेटर में, याद है क्या आपको, RB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू RE आया. तब जब आपने एमिटर बायस लगाया तो आपको ये एमिटर रजिस्टर आया इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में. और अभी कौन आया है, तो अभी RE के जगह पर कौन आया है बच्चों, RC आया है. तो इस तरीके से जब आप कलेक्टर बायस करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि ये जो आपका IB का वैल्यू है, दैट IB का वैल्यू डिसाइड करने के लिए नॉट ओनली योर RB एंड दिस बट दिस RC विल ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. तो IB का वैल्यू कैलकुलेट हो गया. इसके बाद हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ IC.
IC का वैल्यू कितना आता है, बीटा मल्टीप्लाइड बाय IB, ये तो अभी आपको रट ही गया होगा. सो हियर यू हैड एंड अप विद द इनपुट साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर. अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू, अभी इनपुट लूप हो गया, अभी कहाँ जाएंगे हम, आउटपुट लूप में. आउटपुट लूप में इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से ग्राउंड. इस तरीके से हम इक्वेशन लिखने वाले हैं आउटपुट लूप में. समझ गए ना आप लोग. तो अभी मैं एक एक कंपोनेंट जाता हूँ और अगला क्या आएगा, VCC, बाद में क्या आएगा, माइक अनम्यूट करके बोलो, माइनस IE इंटू आर. बराबर है, यहाँ तक पहुँच जाऊँ, VCC माइनस IE इंटू RC. बाद में ये क्या हो जाएगा, माइनस VCE माइनस VC माइनस VCE माइनस VCE इज इक्वल टू 0. आ गया इक्वेशन. कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है इसके अंदर, हो गया. आउटर लूप का इक्वेशन लिखेंगे अभी. आउटर लूप का इक्वेशन जो आपने बोला, क्या बोला था आपने, VCC माइनस IA इंटू RC माइनस VCE is equal to 0. So by using this equation now, we can write down what is value of VCE. Yes, we can write down. What will be the value of VCE? It can be given as VCE is equal to VCC माइनस, आपको याद है क्या वो इक्वेशन क्या था, VCC माइनस IA इंटू RC. सब कुछ साथ में लिखा था तो क्लियरली क्लियर हो जाएगा बच्चों लोग, एक झटके में क्लियर हो जाएगा. सो in this manner we have obtained these three equations for IB, for IC and for VCE. So this is how it is known as collector to base bias. अभी जैसे कलेक्टर टू बेस हुआ, बायस हुआ, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, पहले वाले की तरह यहाँ पर एमिटर रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, ये सर्किट में एमिटर रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है. तो अभी अगला वाला सर्किट में हम क्या देखेंगे, अगले वाले सर्किट में हम देखेंगे कलेक्टर टू बेस बायस विथ एमिटर बायस. मतलब उसमें हम क्या कनेक्ट करेंगे बच्चों, एमिटर रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे. अभी एमिटर टू बेस बायस विथ कलेक्टर बायस देखेंगे. विथ एमिटर बायस कंपोनेंट्स के नाम लिख देता हूँ. कलेक्टर रेजिस्टर इंडिकेटेड बाय RP, सप्लाई वोल्टेज गिवन बाय plus VCC, base resistor RB and emitter resistor given by RE. Let us draw the current. So we already have discussed this during our previous circuit that how the current will be indicated. मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए, ये बेस रेजिस्टर में से करंट, ये करंट का नाम क्या आएगा. अभी मैं आपका आवाज़ चाहता हूँ बच्चों, मेरे को चैट बॉक्स सामने ना देख नहीं पा रहा हूँ मैं. ये बोलिए क्या बोलूँगा उसको, इसको मैं, ये कंपोनेंट के करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ये करंट का क्या वैल्यू है जो यहाँ बेस में ड्रॉ करेंगे, वो इसको क्या बोलते हैं, आवाज़ सुनना चाहता हूँ. IB यस, IB, बेस करंट IB. थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो स्टूडेंट, यहाँ पर कोई पनिशमेंट देने वाले हैं क्या, अगर गलत हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हो गया IB. बाद में ये कलेक्टर में एंटर करने वाले भाई साहब है, कलेक्टर में इनका क्या नाम दूंगा मैं, कलेक्टर करंट. देखो कैसे आएगा, क्या नाम आएगा इसका, IC कलेक्टर करंट. यस 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 यस, कलेक्टर करंट IC. बाद में ये आएगा एमिटर करंट एट एमिटर रजिस्टर, इसका क्या नाम आएगा, एमिटर करंट IE. और इसके बाद में एक करंट मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था जो ये कलेक्टर रजिस्टर में से फ्लो हो रहा है, इसका वैल्यू क्या लिखा था मैंने, दिस करंट इज स्पेसिफाइड बाय IB प्लस IC. तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होता है, IB प्लस IC का IE. यहाँ पर इसी करंट के सारे कार्यक्रम सॉल्व कर दिए. इसके बाद में आपको लिखने पड़ते हैं वोल्टेज. तो ये यहाँ पर मुझे कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज दिखाना है. कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर का साइड पॉजिटिव रखा है
एमिटर का साइड नेगेटिव रखा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बोलिए क्या आएगा ये? VC सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है, ये बेस टू एमिटर वोल्टेज है, ये बेस टू एमिटर वोल्टेज में मैंने बेस को पॉजिटिव कंसिडर किया है और एमिटर को नेगेटिव कंसिडर किया है, तो ये वोल्टेज क्या आएगा, क्या लिखूंगा मैं, VB। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ से इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो दिखाता हूँ, आप ही लोगों को लिखने हैं, मैं सिर्फ अपना पेन घुमाऊंगा। तो पहला इक्वेशन हम लिखेंगे इनपुट साइड, आप समझ गए होंगे कि हमको इक्वेशन कैसा लिखना है। ये VCC से स्टार्ट करना है, बाद में ये बेस में जाना है, फिर ये यहाँ आना है, फिर ये यहाँ आना है, फिर यहाँ से ग्राउंड में जाना है। समझ में आ गया? इस तरीके से हमको इक्वेशन लिखना है। एक बार मैं पाथ वापस ड्रॉ करता हूँ चाहिए तो। पाथ कैसे था, VCC से इधर, फिर ये RB में जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से ग्राउंड तक जाना, इस तरीके से। तो ये अपना इक्वेशन का पाथ हो गया। तो अभी मैं एक एक लाइन लिखूंगा और आप मुझे एक एक टर्म बोलेंगे। बोलो, पहला स्टार्ट किया यहाँ से, क्या आएगा ये? VC बोलो स्टूडेंट, बोल। VCC स्टार्ट किया यहाँ से, क्या क्या आएगा ये? यस, VCC। इसके बाद में ये क्या आएगा? नेक्स्ट minus RC करंट बोलना, बाद में रेजिस्टेंस बोलना, पहले करंट बोलना, बाद में रेजिस्टेंस बोलना। तो क्या आएगा? माइनस ऑफ IE and IE इंटू RC। ओके, सभी लोग पार्टिसिपेट करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है क्या स्टूडेंट्स? जब ऐसा एक रेजिस्टर होता है R नाम का और इसको आप करंट I बोलते हो, तो ये प्लस माइनस हो गया और आपको इक्वेशन लिखना है ना, तो इसको हम कैसे बोलते हैं? माइनस ऑफ I इंटू R बोलते हैं। इसको हम कैसे बोलते हैं? माइनस ऑफ I इंटू R बोलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब वैल्यूज दी रहेंगी ना तो पहले वैल्यू लिख के बाद में करंट का नाम लिखते हैं हम लोग। लेकिन अगर वैल्यूज नहीं दी रहेंगी तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया वैसे लिखना, ठीक है? नेक्स्ट आगे जाएंगे, इसमें से जाएंगे, ये देखो, ये इसमें से जाना है हमको। बोलो बोलो भाई, ये क्या आएगा? minus IB to RB माइनस IB इंटू RB। परफेक्ट बोला। अभी यहाँ से आगे जाएंगे इस तरीके से, इसमें से जाना है हमको। minus VB। हाँ, ये प्लस माइनस में क्यों लिख रहा हूँ वो आप लोगों को मालूम है, ऐसे मैं आशा करता हूँ फर्स्ट ईयर BEE में ये चीज़ आपको समझा चुके होंगे। तो इसका वैल्यू आएगा माइनस ऑफ VB। बाद में आपको यहाँ से यहाँ जाना है, क्या होगा बोलिए? minus IE into RE माइनस IE इंटू RE इज इक्वल टू 0। आ गया ना ग्राउंड तक, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखेंगे और देखेंगे कि हमको क्या मिलता है। इक्वेशन लिखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये इतना सरप्राइजिंग चीज़ क्या है इसके अंदर। ये सर बार बार क्या बोल रहे हैं कि कलेक्ट एमिटर बायस लगाओ, एमिटर बायस लगाओ, उसके डेरिवेशन आपको सामने बाद में रखता हूँ मैं। फिलहाल आप ये समझिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट किया था? VCC से, याद होगा इक्वेशन। अभी आंखों के सामने सर्किट आना चाहिए सीधा, इतना एक्सपर्टीज आपको आना ही चाहिए। पहला क्या था? VCC, बाद में IE माइनस IE इंटू RC। बोल सकते हो माइनस IE इंटू RC। तो क्या आया था? minus IB into RB माइनस IB इंटू RB। बाद में बेस टू एमिटर वोल्टेज आया था माइनस ऑफ VBE। माइनस ऑफ, बाद में एमिटर रजिस्टर आया था ना, माइनस ऑफ IE इंटू RE इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है? सर्किट याद आ रहा है? मैं लिख रहा हूँ वैसे सर्किट याद आना चाहिए। वोल्टेज और करंट को साथ में कर लो। तो यहाँ वोल्टेज के टर्म्स में क्या बचता है? VCC माइनस VBE। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये VCC माइनस VBE आपके लाइफ में एक बार आए और फिर कंटिन्यूसली आते ही चले गए। VCC माइनस VBE माइनस IB, और IE के टर्म्स कितने हैं? 2 टर्म्स है, तो उसको कॉमन ले लो। तो IE को कॉमन लोगे तो क्या होगा? IE इंटू ब्रैकेट RC प्लस IE इंटू ब्रैकेट RC प्लस RE इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे? IE को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस बीटा इंटू IB से। तो इक्वेशन क्या हो जाता है? इक्वेशन हो जाता है सर IB into RB आना बोलना
IB into RB. हाँ लिखना भूल गया मैं, लिखना भूल गया, आरबी को लिखना भूल गया, लिख देता। क्या आएगा, VBE माइनस IB इंटू RB, बाद में क्या आएगा, माइनस IE इंटू ब्रैकेट RC प्लस RE इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, IE को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 प्लस बीटा इंटू IB। तो आपका इक्वेशन बनेगा VCC माइनस VBE माइनस IB इंटू RB माइनस 1 प्लस बीटा इंटू IB इंटू ब्रैकेट RC प्लस RE इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अभी आपको जो इक्वेशन यू आर लुकिंग फ्रॉम IB फॉर IB का इक्वेशन, so you can get your IB का equation like this. So you will get IB का equation very easily. The value of IB can be given as IB is equal to, ऊपर का टेन्योर सेम आता है, VCC माइनस VCC माइनस VBE अपॉन ब्रैकेट। अब ये नीचे क्या क्या टर्म्स आएंगे आप बता सकते हो मुझे। यहाँ पर क्या आएगा, RB, पहला टर्म आएगा RB, जो अकेला पहले RB आता था, फिर एक ब्रैकेट आएगा 1 प्लस बीटा, 1 plus with और दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, RC प्लस RE। RC plus RE. प्लस RE। स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे ना, तो अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गई रहेंगी कि हम जैसे जैसे एडवांस सर्किट के पास जा रहे हैं ना, what we are doing is we are including more and more component. We are including more and more component who will decide the value of IB. What is advantage of this? We will come to know in our coming lectures. तो पहले आपने क्या देखा, पहले आपने देखा कि ये जो RB भाई साहब है, डिनोमिनेटर में सिर्फ ये RB भाई साहब आते थे। ये जो RB भाई साहब मैंने आपके सामने रखे हैं, डिनोमिनेटर में पहले ये अकेले आते थे। फिर हमने देखा कि ये 1 प्लस बीटा और RE आने लगे, कौन से वाले, दूसरे वाले सर्किट में, हमारे बेस बायस में मैं बोल रहा हूँ। बच्चों मेरी टेक्निक समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ। बेस बायस में कौन आ रहा है, करंट एक्साइट करने के लिए 1 प्लस बीटा आया और RE आया, बराबर है। फिर हम गए कलेक्टर बायस में, तो कलेक्टर बायस में क्या हो गया, कलेक्टर बायस विदाउट एमिटर रजिस्टर। सो कलेक्टर बायस विदाउट रजिस्टर में ये RB भी आया, ये 1 प्लस बीटा भी आया और ये RC भी आया। उस टाइम पे RE आया नहीं, क्योंकि RE आपने लगाया इनने का। और बाद में हमने लास्ट में देखा कलेक्टर टू बेस बायस विद एमिटर रजिस्टर, जहाँ पर सारे के सारे पैरामीटर आ गए। सर हमको इसमें से क्या सीखना है, अभी आपको सीखना है IC का इक्वेशन लिखना है आपको IB के बाद में, जो आप हमेशा करते आ रहे हो। आराम से आप मुझे बता दो कि क्या लिखने वाला हूँ मैं। IC इज इक्वल टू, हाँ IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो आपको ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आउटर लूप का इक्वेशन लिखेंगे। सभी लोगों को मालूम है हम क्या करने वाले, मैं सिर्फ डायरेक्शन लिखता हूँ। ये देखो VCC से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से नीचे नीचे ग्राउंड तक हम लोग जाएंगे। आपको समझ में आ गया। अभी आप लोग मुझे बोलेंगे, मैं पहले VCC से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक मेरा एरो जाएगा उतना ही इक्वेशन बोलेंगे, माइक को अनम्यूट करके इक्वेशन बोलेंगे, फिर वही वापस माइक म्यूट कर देंगे। मेरे ख्याल से अभी ये पूरा इक्वेशन आप सभी लोग बोल सकते हो, और मुझे सभी लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, एक या दो आवाज़ में नहीं चलेगा, ठीक है। सभी लोगों के पास माइक्रोफोन है, सभी लोग बोल सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, पहला बोलिए क्या आएगा, VCC. VCC. पहला क्या आएगा, VCC। अभी ध्यान से बोलना। नेक्स्ट माइनस IB और Minus RE. मुझे सुना ही नहीं दिया, सब लोगों ने साथ में बोला। क्या आएगा वापिस, माइनस IE माइनस यस माइनस IE इंटू RC। हाँ, इसके बाद में क्या आएगा, माइनस VC माइनस VCE, बराबर है। Yes. हेलो, माइनस VC माइनस IE इंटू RE। Minus IE.
I minus IE into R. खत्म हो गया, माइनस IE into R. इक्वेशन लिख दूं मैं अभी फटाफट. Output equation starting from VCC we have seen the equation is VCC minus, आपको याद होगा, this becomes IE into, क्या था इक्वेशन, IE into RC RC minus VC E minus IE into RE. RE is equal to 0. So taking IE common over here, you can write down VCC minus VCE minus IE into bracket RC plus RE is equal to 0. So here you can write down your equation which can give you value of VCE if the circuit is given to you. So final conclusion is VCE is equal to VCC minus IE into bracket RC plus RE. I hope you have understood the topic. What we have done today is we have done collector to base bias. So quickly going through what we have done. हम लोग quickly देख लेते हैं. What we have done, we have seen this collector to base bias without emitter resistor first. So what we have done, we have applied a KVL to the input side. ये इस तरीके से हमने KVL implement किया. As shown in the direction, ये इस तरीके से हमने KVL implement किया to the input side. Once we had applied the KVL to the input side, we have found how to calculate the value of IB. This equation we have found. Then, by using a basic properties of transistor, we have obtained how to find out the value of IC. Then, once we got value of IC, we had applied the Kirchhoff voltage law equation to the outer loop side in a direction as shown in the figure, and then we have obtained the way to write down the equation of this particular VCE. How to get value of VC that we have found. Then we had included emitter bias in this particular circuit. So adding emitter bias is nothing but adding this emitter resistor inside the circuit. So what we have done, we have added this emitter resistor inside the circuit. Once the resistance has been added, we had done the same thing. We had applied the input equation to this particular input loop. ये जो direction में दिखा रहा हूँ, ये direction में हमने इसको equation implement किया. And once we had implemented the equation in this direction, we have found how to calculate the value of IB. इसका बाद में हम लोगों ने क्या किया, IC का value IB से लिख दिया. IC is equal to beta into IB. So we have written what is value of IC. And then we had applied a output equation, to the outer loop as shown in figure. And we have seen how to write down the equation for the outer loop. And once you got the equation for the outer loop, you people have understood how to represent the value of VCE in the remaining, or in the format of the remaining parameter.